mutual funds, taxability issues. So now this topic was proposed by our Honorable Kamal ji, and it was written by Venkatesh Malpani ji. It was reviewed by the most Honorable Kanika Khandelwal ji. The inputs were Alok Kundalia ji and Isha Sharma ji. So now moving forward, जो मैं discuss करने वाला हूँ यहाँ पर mutual fund, its fundamentals and basic process, types of mutual funds, taxability of income arising from mutual funds, that will be the core topic of discussion, and dividend stripping and bonus stripping, some additions made by me. Now the fourth point was not in the original article written by Venkatesh ji. I have included these topics from my side. So now coming to it, what is a mutual fund? Anybody? Varun ji? Okay, so now correcting you, what happens in a mutual fund? Like a mutual fund is in, you can say it is a, like if we see this word, fund is basically a common pool. Mutuality, लोग अपना पैसा इस fund में डालेंगे. Now what happens? Mutual fund, it is an investment program, ठीक है? In which it is funded by unit holders. Now company किससे funded होती है? Shareholders से. Shareholders company में अपना पैसा लगाएंगे. उसी तरह से म्यूचुअल फंड फंडेड होता है यूनिट होल्डर्स से. जिनके पास म्यूचुअल फंड की यूनिट्स होती हैं उनको यूनिट होल्डर्स बोलेंगे. ट्रेड्स इन डाइवर्सिफाइड होल्डिंग्स. सो नाउ डाइवर्सिफाइड होल्डिंग्स आर व्हाट? शेयर्स, डिबेंचर्स, bonds, etc. and is professionally managed. So now what happens if we see a base? Suppose I am trading. So now I can also hold. I can also trade in diversified holdings, but that would not be professionally managed. It can also happen कि मैं अपने relatives के साथ कुछ relatives का भी पैसा collect कर लूँ और invest कर रहा हूँ, but that would not be professionally managed. So the four conditions are: it is funded by unit holders, it trades in diversified holdings, and is professionally managed. So if all these are there, then it is a mutual fund. So now अब mutual fund के process पर आते हैं जिससे आप लोग और अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि ये है क्या चीज. So now there are investors, ठीक है? उनके पास पैसा है, surplus उनके पास है जो उन्हें invest कर रहा है. So now they will pool their money with fund manager. So now fund manager is a professional who will manage the money, so he will invest in securities. So now securities क्या हो सकती है इस केस में? अतुल जी, securities. Yes, exactly, shares and debentures, and those will generate returns, or then these returns will be passed back to investors. इतना सब समझ रहे हैं? So now अब हम आते हैं कि म्यूचुअल फंड्स के टाइप्स कौन कौन से होंगे. So now म्यूचुअल फंड्स, हम जो म्यूचुअल फंड्स का डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पे, हम टैक्सेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे. तो अपन उसी के अंडर जो टाइप दे रखे हैं हम उनका डिस्कशन करेंगे. So now there are two types of mutual funds: equity oriented mutual funds and other than equity oriented mutual funds. So now what are equity oriented mutual funds? In which the corpus, in which the amount of corpus, more than 65% of corpus is invested into equity. So now what is equity? Shares. इक्विटी में शेयर्स आएंगे. और अदर देन इक्विटी क्या हो सकता है? बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज एक्सेट्रा. ठीक है, तो दो तरह की म्यूचुअल फंड की बात कर रहे हैं हम लोग, इक्विटी एंड अदर देन इक्विटी. अब हम आगे चलते हैं कि म्यूचुअल फंड्स हैं उनसे किस तरह के बेनिफिट्स अराइज हो सकते हैं. हमें सब लोगों ने देख लिया होगा, फिर भी डिस्कसिंग किस तरह के बेनिफिट्स अराइज हो सकते हैं. मोहित जी, किस फॉर्म में? ठीक है, और एक और कुछ और भी हो सकता है. म्यूचुअल फंड को हम सेल कर रहे हैं, हम रिडीम कर रहे हैं अपनी यूनिट्स को, है ना? तो एग्जैक्टली दो तरह की यहाँ पे हमें इनकम अराइज हो सकती है. वन विल बी कैपिटल गेन which may arise on the sale or redemption of units, and one will be dividend income. डिविडेंड मिलेगा हमें पीरियोडिकली, जो म्यूचुअल फंड की पॉलिसी होगी. जैसे कंपनी ईयरली डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है, म्यूचुअल फंड भी हो सकता है हाफ ईयरली डिक्लेयर करे, ईयरली डिक्लेयर करे. और दूसरी चीज हो गई कैपिटल गेन. सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड, हम लोग पहले डिस्कस कर रहे हैं कि कैपिटल गेन्स हुआ है म्यूचुअल फंड में,
तो क्या टैक्सेबिलिटी रहती है और कैसे डिटरमाइन होता है कि ये लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है. So now capital gain may be classified under LTCG और STCG. These all of you know. So now LTCG या STCG डिटरमाइन करने के लिए हम लोग देखेंगे कि पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या है. पीरियड ऑफ होल्डिंग इज डिटरमाइंड बाय सेक्शन 242A. So now पीरियड ऑफ होल्डिंग इज हमारी परचेज डेट क्या थी और सेल डेट क्या थी और उनके बीच में डिफरेंस क्या है, वो हमारा पीरियड है. इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स अब हम डिस्कशन करेंगे इक्विटी ओरिएंटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से और नॉन इक्विटी ओरिएंटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से. In case of equity oriented mutual funds, those will be considered as long term capital gains if the period of holding is more than 1 year. And in case of non equity oriented mutual funds, that is 65% से less corpus equity में invest है, उनका long term capital gains माना जाएगा if it is held for more than 3 years. So now everybody is understanding it. In case of equity oriented it is greater than 1 year, and in case of debt oriented or other than equity oriented it is 3 years, and vice versa in case of STCG. STCG में ये हो गया कि equity oriented अगर less than 1 year में sell हो गए तो short term मानेंगे capital gain को, और अगर debt oriented less than 3 years में sell हो गए तो उसको मानेंगे STCG. ये सबको क्लियर है 3 years और 1 year वाली कंडीशन. नाउ मूविंग फॉरवर्ड हम लोग देखते हैं कि म्यूचुअल फंड्स की टैक्स रेट क्या है. नाउ अगेन इक्विटी ओरिएंटेड की अलग होगी और डेट ओरिएंटेड की अलग होगी. In case of equity oriented mutual funds, section 115A हम सब 111A हमने सबने पढ़ा है. In IPCC also, और ये इंडिविजुअल्स के रिटर्न्स करते हुए काफी काम आता है. कोई शेयर सेल हो रहा है या फिर कोई म्यूचुअल फंड वो होल्ड कर रहा है, इक्विटी ओरिएंटेड हो, तो हमें बेनिफिशियल रेट मिलती है 15%. नॉर्मली एसटीसीजी की क्या टैक्सेबिलिटी होती है? केशव जी, मुकुंद जी के नियर बाय, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स की टैक्सेबिलिटी क्या होती है नॉर्मल कोर्स में? यस, स्लैब रेट्स यू सेड. हाँ एग्जैक्टली. नॉर्मली क्या होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स में जो होता है वो नॉर्मल इंडिविजुअल का जो टैक्स ब्रैकेट होता है वो यूज होता है. बट सेक्शन 111A ऐसा बेनिफिशियल सेक्शन है जिसमें 15% की रेट दे रखी है. सो नाउ दिस बेनिफिट इज एप्लीकेबल ओनली टू इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स. सो अब हम इस टेबल को देखते हैं. In case of equity oriented mutual funds, 15% STG under section 111A, and in case of debt oriented mutual funds, it is as per person's income tax bracket, जो कि normal tax rates होगी. And if we talk about long term capital gains, equity oriented के long term capital gains exempt होंगे. So now everybody knows जब हम shares की trading करते हैं तो shares के जो long term capital gain होता है वो exempt होता है या taxable होता है? 1833 और उसमें हमने 20% टैक्स रेट अप्लाई कर दी. एलटीसीजी के केस में टैक्स आ गया. अब एक क्वेश्चन आता है, कैन द यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड बी हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड? आलोक जी, व्हाट डू यू थिंक? ऑल राइट, एज राइटली सेड बाय आलोक जी. नाउ ठीक है, मान लीजिए मेरा वेजिटेबल्स का बिजनेस है, मैं वेजिटेबल सेल परचेज सेल कर रहा हूँ. उसी तरह से मेरा म्यूचुअल फंड्स भी परचेज सेल करने का बिजनेस हो सकता है. कोई हो सकता है कि इसको एज एन इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी करे, बट मैं रूटीन मैनर में ही अपना मतलब ये बिजनेस कर रहा हूँ कि मैं म्यूचुअल फंड्स में यूनिट्स परचेज कर रहा हूँ फिर उन्हें सेल कर रहा हूँ. तो इस केस में जो प्रॉफिट्स होंगे वो पीजीबीपी में अराइज होंगे. सो नाउ द इनकम विल बी टैक्स्ड एट रेट्स एट व्हिच द नॉर्मल इनकम ऑफ इंडिविजुअल ऑफ दैट इन्वेस्टर इज टैक्स्ड. सो नाउ नॉर्मल प्रोविजंस अप्लाई हो जाएंगे इस केस में. तो हम लोग को ये समझ आ गया कि एक तो ट्रीटमेंट होता है इन्वेस्टर की तरह और एक ट्रीटमेंट होता है बिजनेस की तरह. इन्वेस्टर के टैक्स रेट्स हमने देख लिए, वो स्पेशल होंगे, और बिजनेस के टैक्स रेट्स जो है अगर वो बिजनेस है तो नॉर्मल जो टैक्स रेट्स है वो अप्लाई हो जाएंगे. मूविंग फॉरवर्ड अब हम लोग देखेंगे सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स का ट्रीटमेंट. जब आप लोग रियल लाइफ में इनकाउंटर करेंगे, जैसे आप लोग को रिटर्न बना रहे हैं और उसमें म्यूचुअल फंड्स की ट्रेडिंग आ रही है, डिपेंड करता है कि वो बिजनेस हो, डिपेंड करता है वो इन्वेस्टमेंट हो. आप एक कंपोनेंट देखेंगे सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, उसका अमाउंट बहुत कम होगा बिकॉज रेट बहुत कम होती है सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स की. इट इज अराउंड 0.1%. सो नाउ द अमाउंट विल बी वेरी लोअर, बट यू विल थिंक कि इसका ट्रीटमेंट क्या होगा. तो मैं जानना चाहूंगा किसी को भी आइडिया है कि सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स का ट्रीटमेंट क्या होगा? हम लोग जब एलटीसीजी या एसटीसीजी कैलकुलेट करते हैं तो एक वो जो कॉस्ट ऑफ एक्सपेंस ट्रांसफर होता है हम लेस करते हैं.
तो it is not included in the deduction. एग्जैक्टली अगर हम LTCG अगर हम इन्वेस्टमेंट के तौर पे इन्हें देख रहे हैं तो फिर जो बात आ रही है STT का डिडक्शन नहीं मिलेगा, बट अगर ये बिजनेस है फिर एग्जैक्टली तो फिर STT का जो पेमेंट है वो अलाउड हो जाएगा। तो अब सबको क्लैरिटी आ रही है, सब लोग ये चीज याद रखेंगे जब भी इस तरह की सिचुएशन को एनकाउंटर कर रहे हैं कि क्या ट्रीटमेंट होगा। हाँ कुणाल जी इसमें स्पेसिफिकली फॉर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स it has been clearly specified that it is not to be included in the cost of transfer. आप किसी भी वे में इनका कैपिटल गेन कैलकुलेट करते हुए डिडक्शन नहीं ले सकते। सो इट इज क्लियर कि जो भी कॉस्ट है वो हमारी संक कॉस्ट है, उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड हमारा कैपिटल गेन्स डिस्कस हो गया। अब जो सेकंड कंपोनेंट था इनकम का वो था डिविडेंड। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि डिविडेंड की इनकम का क्या ट्रीटमेंट है इन हैंड्स ऑफ म्यूचुअल फंड। अब हम बात करेंगे डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड की। जो डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है वो अपनी इनकम ऑब्टेन करेगा नॉर्मली इंटरेस्ट से, मतलब उसको ब्याज मिलेगा कहीं ना कहीं से, बॉन्ड से मिले, डिबेंचर्स से मिले, व्हाटएवर। सो नाउ एक्चुअली में उस पे अभी तक कभी टैक्स इंसिडेंस नहीं आया। तो ना जब वो अपना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेगा ना उसको टैक्स जमा कराना है अंडर सेक्शन 115R। 115O इज फॉर व्हाट? DDT मतलब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स फॉर कंपनी। एग्जैक्टली DDT हो गया 115O। उसी तरह से 115R है, इट इज टैक्स ऑन डिविडेंड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बाय म्यूचुअल फंड, और इसकी टैक्स रेट उसी तरह से है। और अगर डिविडेंड पे कर रही है इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स तो क्या होना चाहिए? मतलब ये एग्जेम्प्ट है, ये तो ठीक है नजर आ गया, बट क्यों? क्योंकि जो कंपनी है उसने पे कर दिया होगा ना DDT। हाँ एग्जैक्टली, राइटली सेड बाय प्राची जी। अंडरस्टैंड, अगर एक म्यूचुअल फंड है उसने रिलायंस के शेयर्स हेल्ड कर रखे हैं तो ऑलरेडी रिलायंस ने म्यूचुअल फंड को जब डिविडेंड दिया होगा तो उस पर DDT जमा कराया होगा। अब अगर वापस DDT लगेगा तो एक ही तरह की इनकम पे मैं इन्वेस्टर हूं, मैंने किसी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया है तो दो बार DDT पे करना पड़ जाएगा। एक बार रिलायंस पे करेगी फिर एक बार वो म्यूचुअल फंड करेगा, तो यहाँ पे डबल इंसिडेंस आ जाएगा। इसीलिए डिविडेंड पेड बाय इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स को एग्जेम्प्ट रखा गया है, और एक ही बेनिफिट भी दिया गया है पब्लिक को कि ताकि पब्लिक ज्यादा से ज्यादा अपना पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करे। एंड नाउ इन केस ऑफ यूनिट होल्डर्स की यूनिट होल्डर्स के हैंड में क्या ट्रीटमेंट हो रहा है? जैसे 1034 में डिविडेंड एग्जेम्प्ट है, इन केस ऑफ शेयर्स किसी भी पर्सन को डिविडेंड मिल रहा है तो एग्जेम्प्ट है उसके हैंड में अंडर सेक्शन 1034। इसी तरह से dividend paid by a mutual fund, it is exempt under the hand in the hand of unit holders under section 1035. It is clear to everybody. Similar provisions चल रहे हैं, कुछ difference चल रहा है बस यहाँ पे। Now one concept comes here, dividend stripping. Now that is quite an interesting topic. So now you people have to focus to understand it, वरना कुछ भी समझ नहीं आएगा यहाँ पे। Now dividend stripping की हम बात करें, आप लोगों को कम डिविडेंड और एक्स डिविडेंड पता है सबको, मतलब AS13 पढ़ाई होगा शायद। क्या होता है सौरभ जी, मतलब क्या होता है उस केस में? मतलब जब एक्स डिविडेंड या कम डिविडेंड होती है प्राइसेस, क्या होता है उस केस में? मतलब कम डिविडेंड प्राइस ज्यादा होगी या एक्स डिविडेंड प्राइस ज्यादा होगी किसी भी शेयर की? कम डिविडेंड। सो नाउ हाउ? बिकॉज़ उसमें इंक्लूड होता है ऑलरेडी। एग्जैक्टली। सो नाउ कम डिविडेंड के केस में क्या हो रहा है? मान लीजिए आज मैंने शेयर परचेज किया, आज उसकी प्राइस है 800 रुपए। रीजन बीइंग उस पे मुझे 100 रुपए का डिविडेंड मिलने वाला है थोड़े दिनों बाद, और अगर मुझे मान लीजिए डिविडेंड मिल गया फिर उसकी जो प्राइस होगी ना वो आज की प्राइस से कम होगी, बिकॉज जो मार्केट में जो प्राइस डिटरमाइन हो रही है उसमें एक बेनिफिट इन्वॉल्व था जो कि डिविडेंड के फॉर्म में मिलने वाला था। सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग इन दिस केस? डिविडेंड स्ट्रिपिंग की हम लोग बात करें, इट इज अ प्रोसेस बाय विच एन इन्वेस्टर गेट्स टैक्स फ्री डिविडेंड बाय इन्वेस्टिंग इन यूनिट्स शॉर्टली बिफोर द रिकॉर्ड डेट। रिकॉर्ड डेट होती है जिस दिन कंपनी अपने शेयर होल्डर्स का जो शेयर होल्डर्स की जो लिस्ट है कंपनी उसे फ्रीज कर देगी, और उस दिन जो जो नाम आ रहे होंगे उन्हें डिविडेंड दिया जाएगा। सो नाउ अगर हम लोग अगर एक शेयर होल्डर इन्वेस्ट कर रहा है, अगर एक यूनिट होल्डर, अगर एक पर्सन इन्वेस्ट कर रहा है म्यूचुअल फंड में,
before the record date. So now he will get tax-free dividend by investing in units, and shortly before the record date he will invest and exiting after the record date at a lower price. So now basically जो prices होगी वो lower होगी after record date. What do you think, भूपेंद्र जी? समझ आ रहा है आपको? मतलब I will repeat it. ठीक है. डिविडेंड स्ट्रिपिंग में क्या हो रहा है? आज रिकॉर्ड डेट है, रिकॉर्ड डेट के पहले जो कल प्राइस होता शेयर का वो ज्यादा होगा, बिकॉज अब मान लीजिए कल शेयर प्राइस होना चाहिए था 900 रुपए, क्योंकि 100 रुपए का डिविडेंड मिलने वाला था. अगर आज मुझे वो डिविडेंड मिल जाएगा तो आने वाले कल में जो शेयर प्राइस होगा वो ऑब्वियसली 100 रुपए घटाकर होगा, यानी कि 800 रुपए होगा. ये चीज समझ सकते हैं अपन लोग. तो ना अब क्या हो रहा है, एक शेयर एक पर्सन इनकम अर्न कर रहा है टैक्स फ्री, डिविडेंड उसके हैंड्स में टैक्स फ्री होगा. और अब मान लीजिए कल आपको डिविडेंड मिल गया आने वाले कल को और शेयर प्राइस कम है और आपने सेल कर दिया. तो ना यहाँ पे आपको क्या हो रहा है, एलटीसीजी एसटीसीजी हो रहा है या एसटीसीएल हो रहा है, और कितने रुपए का हो रहा है? 900 में खरीदा, 800 में बेच दिया, 100 रुपए का डिविडेंड मिल गया था. हाँ, आप सही, आप कंसेप्ट को पकड़ पा रहे हैं कि यहाँ पे होना तो कुछ भी नहीं चाहिए, बिकॉज 100 रुपए मुझे मिल गए और 100 रुपए उन्हीं का नुकसान हुआ है. बट अगर हम प्रोविजंस पे चलें, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स में कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो इसमें क्या होगा, मेरी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या है यहाँ पे, 800 है या क्या है? 800 फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन. मैंने जितने में शेयर्स यूनिट्स बेची है दैट इज 800, एंड मैंने परचेज करा था 2 दिन पहले, वो था 900 रुपए. नाउ व्हाट इज हैपनिंग, 100 रुपीज का मेरे शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस जनरेट हो रहा है, जिसको मैं सेट ऑफ करूंगा मेरी दूसरी इनकम से. मेरे पास दूसरी इनकम है, उससे मैं सेट ऑफ कर यहाँ पे 30% टैक्स का एडवांटेज ले लूंगा. एक्चुअली में मेरे यहाँ पे कोई लॉस हो रहा है क्या भूपेंद्र जी? नहीं हो रहा, बट मैं बेनिफिट ले रहा हूँ. सो नाउ व्हाट, दिस इज द होल कांसेप्ट, दिस इज डिविडेंड स्ट्रिपिंग. सो नाउ इनकम टैक्स में ये लूप होल था जिसके थ्रू लोग इस तरह से इस टेक्निक पे वर्क कर कर बेनिफिट्स अर्न करे थे. हमने अभी तक डिस्कस कर लिया, अब आप लोग को ये स्लाइड समझ आ जाएगी. STCL is compensated with the tax-free dividend. STCL compensate हो गया tax-free dividend से. Further, investor can set off such loss against other capital gains and also carry forward such losses. भूपेंद्र जी क्लियर हो रहा है? STCL compensate हो गया tax-free dividend से, और इन्वेस्टर को लॉसेस मिल गए कि वो उसे या तो सेट ऑफ करे या कैरी फॉरवर्ड. कैरी फॉरवर्ड कब तक? जो नॉर्मल 8 इयर्स नॉर्मल 8. हाँ. सो नाउ प्रोविजंस अगर हम बात करें, अब ये लूप होल अपन सबको समझ आ गया, तो कुछ प्रोविजंस इंट्रोड्यूस किए गए ताकि इस लूप होल को कवर किया जा सके और लोग ऐसे बेनिफिट्स अर्न नहीं कर पाए. सेक्शन 94(7) ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 डील्स विद डिविडेंड स्ट्रिपिंग. इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2005. It provides that if a person buys any unit within a period of 3 months prior to the record date, record date है जिस दिन dividend declare हो रहा है, उस दिन eligibility develop हो जाती है. अगर within a period of 3 months, भी बहुत similar है dividend stripping से, and we will use that concepts, those concepts. So now bonus stripping, जैसे bonus में क्या होता है, मतलब bonus क्या होते हैं, मतलब शेयर्स के बच्चे होते हैं, उसके जुड़ा भाई होते हैं, क्या होते हैं बोनस? बोनस इशू में क्या होता है? कुलवाल जी जाग जाइए. बेसिकली होता क्या है, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स. P&L से बैलेंस उठाया और इक्विटी शेयर कैपिटल में डाल दिया. एक्चुअली में कुछ होता है क्या, मतलब ना कुछ इनफ्लो हुआ ना कुछ आउटफ्लो हुआ, एक एंट्री पास हो रही है यहाँ पे, P&L अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल. Nothing is happening more than that. So, yes. Out of retained earnings, okay. That doesn't matter. So now, what is happening? Capitalization of profits is happening here. तो इससे बेसिक जो सिचुएशन है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा. तो एक बात बताइएगा, अगर मार्केट में शेयर का प्राइस चल रहा है 200 रुपए, तो क्या जैसे पहले मार्केट में 1000 शेयर्स थे और प्राइस था 200 रुपए, तो अब भी प्राइस 200 ही रहेगा क्या जब शेयर्स 2000 हो गए हैं? बढ़ जाता है. शेयर प्राइस रिड्यूस होगा कि नहीं? कितना? दैट विल डिपेंड, बट अराउंड 100 हो जाना चाहिए वापस. अराउंड प्रोपोर्शनल.
ठीक है, exactly. So now bonus stripping is a practice under which an investor gets bonus units by investing in units shortly before that record date and exiting after the record date at a lower price, thereby increasing a short-term capital loss. Same situation arise हो रही है. Actually में हो कुछ भी नहीं रहा, but अब वापस हम इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शंस अप्लाई करेंगे और हम कैलकुलेशन करेंगे कि शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है या क्या है. तो अब यहाँ पे वही देखा जाएगा, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आ गई 100 रुपए और जो हमारी परचेज कॉस्ट थी वो है 200 रुपए. हमने ओरिजिनल यूनिट सेल करी, तो नाउ 100 रुपीज का हमें लॉस हो रहा है और इस लॉस को हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे. और अगर हम बोनस यूनिट्स को टिल 3 इयर्स हेल्ड कर लें और उन्हें सेल कर दें तो उन पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स एग्जेम्प्ट हो जाएंगे. तो ये बेनिफिट हुआ कि नहीं शेयर यूनिट होल्डर को. So this is the core मतलब इंटेंशन लॉ का कि अगर बोनस स्ट्रिपिंग कोई कर रहा है तो इस तरह से एडवांटेज ले जाएगा. दैट्स व्हाई वी हैव टू प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम डूइंग दिस. अगेन ये भी 2005 में इंट्रोड्यूस हुआ था. सेक्शन 94 सबसेक्शन 8 डील्स विद बोनस स्ट्रिपिंग. It provides that if a person buys any unit within a period of 3 months prior to the record date and वही चीज है period of and sells such unit within a period of 9 months after such record date, then जो लॉस है it shall be ignored. हम वापस एक एग्जांपल से समझते हैं. मॉर्गन स्टैनली म्यूचुअल फंड है. इट इज डिक्लेयर्ड 1:1 बोनस यूनिट्स on its units on 30/4/2015. The fund fixes the record date 31/5. Mr. X जो यूनिट परचेज कर रहा है वो बिफोर द रिकॉर्ड डेट कर रहा है. सो ना उसको बोनस इशू की यूनिट्स मिलेगी and Mr. X sells the units on 11/11/2015. So now again जो यूनिट सेल हो रही है वो विदिन 9 मंथ्स हो रही है. तो यहाँ पे सेक्शन 94 सबसेक्शन 8 की एप्लीकेबिलिटी आ जाती है. Now again what is happening, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस जो हो रहा है यहाँ पे हम देखें 9 रुपीज में शेयर सेल हो रहा है और 20 रुपीज में शेयर परचेज हुआ था. तो वापस जो यहाँ पे लॉस हो रहा है 11,000 का हो रहा है. और जो हमें शेयर्स इशू हुए हैं वो 1:1 रेशियो पे होने हैं. तो जो प्राइस रिडक्शन आना चाहिए था वो एक्चुअली में 10 रुपीज तक आना चाहिए था. व्हाट डू यू थिंक वरुण जी? आप सुन रहे थे क्या? कोशिश कर रहा था. Now again